A very good afternoon, students. This is the Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 10th, I'm here with a new video on acid, bases, and salts. In the previous video, we have started about bases. So, let us start from there only. So, bases basically are it is a metallic oxide or metallic hydroxide or ammonium hydroxide which is reacted with hydronium ion and forms salt and water. Means we can say that ki metallic oxide, hydroxide and ammonium hydroxide, when they react with acids, they forms bases, they form salt and water. So bases are those substances or those chemicals which generally reacted with hydronium ion and forms salt and water. एंड रिएक्शंस में क्या होना चाहिए? मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है। जब इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोनियम आयन से, हाइड्रोनियम आयन या फिर हम कह सकते हैं किससे, एसिड से, तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. They generally in the सारे better in the test है ना, और इनकी जो ऑब्जर्वेशन है पीएच स्केल पे इट इज मोर देन 7. ठीक है. मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटलिक ऑक्साइड आर basically those oxides which contains O2 negative ion in their compound. A basic oxide is the metallic oxide which contains the ion of 2O2 negative and reacts with an acid to form the salt and water, which contain O2 negative ion in it. This kind of compound is known as the metallic oxide. है ना? Like आप बात करें क्यू peroxide, copper oxide, है ना? It is containing oxygen. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है? It is containing, ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? मेटलिक ऑक्साइड. As same way, what do you mean by basic hydroxide? So basic hydroxide can be like sodium hydroxide. It is a metal, है ना? Metallic hydroxide. I hope it is clear. And one more thing, that is I told you ammonium hydroxide. So all the three things, metallic hydroxide, basic oxide, basic hydroxide, and ammonium hydroxide, when they usually react with hydronium ion, they produce salt and water. And those compounds are known as the bases. ठीक है. Now one thing, what do you mean by alkalis? Alkali क्या होता है? जनरली कंफ्यूजन हो जाता है alkali और basis में. Alkali and basis, इनके बीच में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है चीजें, तो इसको समझिएगा. An alkali is a basic hydroxide which when dissolved in water produces hydroxyl ion. Alkali basically वो basic hydroxide होते हैं, when they are dissolved in water they produces hydroxyl ion. Generally आप सबने पढ़ा होगा कि when acids are dissolved in water they produces hydronium ion, as well as when bases are dissolved in water, basic hydroxides are dissolved in water, they produces hydroxyl ion which is OH negative. OH negative. These kind of bases are known as the alkalis. So that's why you can say that all the alkalis are bases, but all the bases are not alkali. क्योंकि bases पे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आएगा, है ना, एंड bases में आपका मेटलिक ऑक्साइड भी आएगा. क्या मेटलिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन आएगा? नहीं आएगा ना. सो दैट्स वाई वो मेटलिक ऑक्साइड का आपका एल्कली हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो इस वजह से हमने क्या कहा, alkalis are those bases, are those metallic oxide hydroxide when they are dissolved in water they produces hydroxyl ion. तो ये आपका एल्कली का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या है? एक एल्कली है. व्हेन इट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस आल्सो हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं.
चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एसिड्स, सॉरी बेसिस। बेसिस में भी आपने टाइप पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ वीक एल्कली क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वीक एल्कली? बेसिकली वीक एल्कली वो होंगे जहां डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो, पार्शियल, ठीक है। Where when they are going to dissolve in water, their hydroxyl ion is partially dissociated. These kinds of alkalis or bases are known as the weak alkali, ठीक है। For example, आप बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा NH4+ और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पूरी तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन का डिसोसिएशन नहीं होगा, इट इज अ वीक एल्कली, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होगा? वेयर द फुल, यहाँ पे कह सकते हो पूरी तरीके से डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एल्कली। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट विल डिसोशिएट इट विल बी कन्वर्टेड टू द दिस। तो यह आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली है एंड इट इज वीक एल्कली। इसको आप एक और एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट विल फॉर्म कैल्शियम एंड here the dissociation is quite partial, ठीक है। और आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। या तो ये पार्शियल होगा या तो कंसंट्रेशन ऑफ OH जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस फॉर्मेट में जो आपका एल्कली होगा इट वुड बी वीक एंड दिस वन विल बी स्ट्रॉन्ग वन, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की जो है कंसंट्रेशन है वो हाई होगी, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी we are talking about the types of bases. This was on the strength, on the basis of strength. Now this will be on the basis of their basicity. On the basis of their basicity. Basicity. Basicity, acidity. On the basis of their acidity. The acidity of the base means the number of hydroxyl ion present, ठीक है, which can be produced per molecule of the base in the aqueous solution, ठीक है। बेसिकली इसको हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कि कितनी ज़्यादा मात्रा में आपका क्या है हाइड्रोक्सिल आयन है, उसी से उसकी बेसिसिटी को हम पता करेंगे। लाइक पहला आपका है मोनोबेसिक। मोनोबेसिक is type of the base in which when they are going to dissociate only one या फिर आपका एक ही हाइड्रोक्सिल आयन आपका बन रहा है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने डिजॉल्व किया तो इट इज कन्वर्टेड टू सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यहाँ पे एक ही डिसोसिएशन हुआ हाइड्रोक्सिल का, तो यहाँ पर मोनोबेसिक हो गया। सेम वे आप बात करोगे डाइबेसिक में, तो लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने अभी भी देखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट वाज गोइंग टू डिसोसिएट तो आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पे कितने डिसोसिएशन हुआ, कितने हाइड्रोक्सिल आयन का? 2 का। तो ये आपका मोनो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डाई, ठीक है, डाइबेसिक। आज सेम में ट्राइबेसिक में 3 डिसोसिएशन होगा, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, यहाँ पे किसका होगा? 3 हाइड्रोक्सिल आयन का डिसोसिएशन होगा, तो ऐसे ही ट्राइबेसिक, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। हाउ डू वी प्रिपेयर bases in the laboratory? Preparation of bases in lab, या फिर कैसे bases का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। पहला तरीका from metals, from metals when any metal is reacted with oxygen they forms metallic oxide। और आपने पढ़ा क्या चीज? मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉरी, बेसिस होते हैं, है ना।
Here you can see this. When metals are reacting with oxygen, it is giving the nitric oxide, which is base. तो first thing क्या हो गया आपकी, from metals how do they bases are prepared? When metals are reacted with oxygen, they form the metallic oxide, and generally आपका क्या है, आपका base, है ना. Next, in the preparation of hydrogen, the second procedure you must have studied. आपका जो दूसरा प्रोसीजर है या दूसरा प्रोसेस है जिससे हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा. इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन एनी मेटल्स रिएक्टेड विथ वाटर, व्हाट हैपेंस. जनरली दो प्रोसीजर्स होते हैं, फिलहाल मैं एक बता दूं. मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स एंड वाटर एंड हाइड्रोजन, सॉरी, in the preparation of hydrogen आपने पढ़ा होगा. When metals react with water, they form metallic hydroxide and water hydrogen. metallic hydroxide क्या होते हैं, बेसिस होते हैं. अच्छा, दो तरीके मैंने बताए इसमें आपको, दो बताए, तो आपने दोनों में तरीकों को समझना. वाटर का जो फॉर्म होगा या स्टेट होगा, उसके कंपोजिशन से जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो बदल सकता है. लाइक अगर ये वाटर का फॉर्म अगर आपने किस में पढ़ लिया, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो ये बदल जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका ये प्रोसीजर वही है, बस वाटर के स्टेट से बदलने से ये हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड हो जाएगा और सेम आपका प्रोडक्ट है. और चाहे वो मेटलिक ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, वो हमेशा क्या होगा, बेस. ठीक, चलिए तीसरी बात करते हैं. बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स. तो अब आपने पढ़ना है कि वो खुद से एक मेटलिक ऑक्साइड ऑलरेडी है, मेटलिक ऑक्साइड है ऑलरेडी, लाइक पोटेशियम ऑक्साइड आई हैव टेकन. It is reacting with water, it is reacting with water and it is forming potassium hydroxide. I hope it is balanced. Yes. ठीक है. So as you can see, when metallic oxide also reacted with water, they forms bases. ठीक है. Next, by double decomposition. By double decomposition, aqueous solution of salts with a base precipitate respective metallic hydroxide. Like एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा. फेरस क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल. इट इज अ सॉल्ट विच इज रिएक्टिंग विथ अनदर बेस. फेरस हाइड्रोक्साइड is a salt, है ना. When it is reacting with another base which is a alkali, ये ध्यान दीजिएगा, which is a base and alkali, it is reacting with this, then there is one thing forms, one precipitate forms. It is basic hydroxide of the solution and one normal salt produces. It is not balanced, but आपको समझना क्या है, when salt, when aqueous solution of salt with reacted with bases or alkali, they forms a precipitate of a base and one salt produces. Aqueous solution of salt with a base or alkali precipitate the respective metallic hydroxide, which is a base. So this is also one formula, one process by which bases are produced. Next, by the action of the oxygen on the metal sulfides. Metallic sulfide, when they going to react with this, like lead sulfate is going to react with oxygen, they are forming what? Lead oxide and sulfur dioxide. It is not balanced. Let me check. Lead, sulfur is there. Oxygen is not balanced. 3 oxygen, 2 PBs, 2 PB and sulfur 2. ठीक है, now it is balanced. So in the next procedure आपने क्या पढ़ा कि when metallic sulfides, this is metallic sulfide, lead sulfide आपका metallic sulfide है, it is reacting with oxygen, it is forming lead oxide and sulfur dioxide. Lead oxide आपका क्या है, metallic oxide है, which is a base. So this is also a procedure by which we can produce bases. Next procedure, by decomposition of salt. When salt dissociate, this also forms oxide of metal and
carbon dioxide gas releases. Here you can see it is a salt which is dissociating in the basic oxide and carbon dioxide. है ना? अच्छा, now one thing is there कि sodium carbonate and potassium carbonate, do they decompose? So they do not decompose to form this, है ना? जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल यहाँ पे और कॉपर कार्बोनेट का एग्जांपल दिया हुआ है. तो सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, so that's why it is not given there. So I have taken the example of calcium carbonate. ठीक है, they do not dissociate when they are going to heat it, but this is and copper carbonate also, when they are going to heat, this will convert it into calcium carbonate and this will convert it into copper oxide. No, this is a this. So when salts are dissociated, तो आपका किस में फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर. आपने पढ़ा अब तक मेटलिक ऑक्साइड मेटलिक हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो एक आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पढ़िए. व्हेन अमोनिया इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर दे जनरली फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज अ वीक एल्कली. ठीक है, when they are going to dissociate in water, तो इसका जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा कम होता है. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे है देखा आपने, अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ. तो दीज आर द प्रोसीजर बाय विच द बेसिस आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. दे हैव अ शार्प बिटर टेस्ट. फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो जैसे आपने एसिड में पढ़ा था, एसिड का सार टेस्ट होता है और इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है. दे आर शार्प एंड बिटर टेस्ट. ठीक है, they have a sharp and bitter taste. They change the color of indicators as well as acids do. ये भी indicators का क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं. लाइक अब एग्जांपल में आपने पढ़ा होगा कि acids were doing blue litmus into the red. सेम वे अगर आप बेसिस की बात करें तो बेसिस रेड लिटमस पेपर को आपका कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लू, है ना. चलिए लेट अस से सो इंडिकेटर्स का क्या इफेक्ट करता है देखते हैं. इंडिकेटर्स लिटमस में आपका रेड टू ब्लू कन्वर्जन. ठीक है, जैसे कन्वर्जन. मेथिल ऑरेंज में क्या होगा, ऑरेंज टू येलो. किसी भी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो ये इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए. फिनाफ्थलीन के लिए साथ में क्या होगा, फिनाफ्थलीन. What would be happen when they are reacting with phenolphthalein? It is converted to colorless to pink. Colorless to pink. Okay. It was remain colorless in acids, but in bases they convert into colorless to pink. They are soapy substances. They are slippery to touch. और इनका जो कंपोजिशन है वो दिखने में कैसा होगा, सोपी, साबुन की झाग जैसा होगा, और स्लिपरी टू टच. ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ये सब एल्कलीज के फॉर्म में. दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइज व्हेन दे आर डिसोसिएशन वाटर. आपने पढ़ा अभी कि जैसे डिसोसिएट किया था वाटर में तो हाइड्रोक्सिल के आयन में टूट जाता है. जब वो आयन में टूट जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आसानी से क्या करा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करा सकता है. तो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. दे शो अ माइल्ड कोरोसिव एक्शन. आज सेम वे जैसे आपने पढ़ा है एसिड में उनका बहुत ज़्यादा होता है कोरोसिव नेचर, बट बेसिस का बहुत ही कम होता है, माइल्ड कोरोसिव नेचर होता है. ठीक है, स्लाइटली बर्न ऑन इसका. ठीक है, ओके क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट chemical properties are left that we will discuss in the next session. Thank you class.